नमस्कार बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टेस्ट पेपर को। अगर आपके पास इसका टेस्ट पेपर नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के टेस्ट पेपर को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म हैज़ ए करंट सेल्स ऑफ रुपीज़ 2,56,48,750. The firm has unutilized capacity. In order to boost its sales, it is considering the relaxation in its credit policy. The proposed terms of credit will be 60 days credit against the present policy of 45 days. As a result, the bad debts increase from 1.5% to 2%. Sales increase by 10%. Variable cost 72%. Tax 35%. And require an after-tax return 15%. Should the firm change its credit period? हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, प्रेजेंट पे और प्रपोज्ड पे। प्रेजेंट और प्रपोज्ड। क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड हमें यहाँ डेज में दे रखा है। एट प्रेजेंट credit period is 45 days. Proposed 60 days. Sales at present it is 2,56,48,750 और ये सेल्स 10% से इंक्रीज होगी प्रपोज में, तो 2,82,13,625. Variable cost, which is 72% of sales, 2,03,13,810. 78,99,815. 2,56,48,750 multiply by 72%. 1,84,67,100. 71,81,650. It is profit before cost of debtor. Less bad debts. 71 लाख, पहले प्रेजेंट में बैड डेट्स कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट में बैड डेट्स है 1.5%। 2,56,48,750 का 1.5%, इट इज़ 3,84,731। 71, 81, 650 में से इसको लेस करेंगे तो ये होगा 67,96,919। इट इज़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस पे अगर टैक्स चार्ज करेंगे, टैक्स 35%, तो ये होगा 2,23,78,922 and the result is net profit. प्रपोज में बैड डेट्स कैलकुलेट करते हैं। 2,82,13,625 का 2%, 56,42,000, 2,82,13,625 का 2%, 5,64,273. 78,99,815 minus 564,273. It is 73,35,542. इसका 35% 25,67,440.
it is 47 lakh 68,102 and 67 lakh 96,919 minus 2378,922. It is 44 lakh 17,997. It is net profit. Less cost of capital. कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट आपको यहाँ दे रखी है 15% और ये कैलकुलेट होगी वेरिएबल कॉस्ट पे 1,84,67,100 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 365 3,41,515. It is cost of capital. प्रपोज्ड में वेरिएबल कॉस्ट इज 2,03,13,810 उस पर 15% मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 365 इट इज 5,500,888 and the result is profit after cost of capital. 44,17,997 minus 341,515. It is 4,07,000. 40,76,482. 47,68,102 minus 500,888. It is 42,67,214. प्रपोज्ड में जो प्रॉफिट आफ्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो प्रेजेंट से ज़्यादा है, इसीलिए हम प्रपोज प्लान को एक्सेप्ट करेंगे. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, ए फर्म मेंटेन ए सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिसबर्समेंट. टोटल डिसबर्समेंट आर 1,05,000 per month or rupees 12,60,000 per year. Administrative and transaction cost of transferring cash to disbursement account is rupees 20 per transfer. Marketable securities is yield is 8% per annum. Determine the optimum cash balance according to William J. Baumol model. C equals to under root 2ft divided by R. 2 multiplied by F is 12,60,000. Transaction cost per transaction is 20 and our rate of interest is 0.08. 2 multiplied by 12,60,000 multiplied by 20 डिवाइडेड बाय 0.08. इसका जब करेंगे हम अंडर रूट तो ये होंगे रुपीज़ 2,50,000 25,099. इट मीन्स 25,100 रुपीज़. 25,100 rupees. It is answer. Question number 3. Dara Singh Limited has current sales of rupees 15 lakh per year. Cost of sales is 75% of sales and bad debts 1%. Cost of sales में 80% variable cost और 20% fixed cost. While the company required rate of return is 12%. Dara Singh Limited currently allow customer 30 days credit, but is considering increasing this to 60 days credit in order to increase sales. It has been estimated that this change in policy will increase sales by 15%, while bad debts will increase from 1% to 4%. It is not expected that the policy will result in an increase in fixed cost and creditor and stock will unchanged. Should Dara Singh Limited introduce the proposed policy? Assume 360 days. हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है प्रेजेंट और प्रपोज्ड में. सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ क्रेडिट पीरियड. क्रेडिट पीरियड डेज में है. अभी हमारा क्रेडिट पीरियड है 30 डेज. हम इसको इंक्रीज करेंगे 60 डेज. सेल्स एट प्रेजेंट आवर सेल्स इज 15 लाख रुपीज. करेक्ट. प्रपोज्ड सेल्स
जैसे हम क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज करेंगे हमारी सेल्स इंक्रीज होगी और हमारी सेल्स 15% इंक्रीज होगी। 15 लाख का 15%, तो ये सेल्स हो जाएगी 17,25,000। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। एट प्रेजेंट आवर टोटल कॉस्ट इज 75% ऑफ सेल्स। 15 लाख का 75% होता है 11,25,000। इस 11,25,000 का 80% वेरिएबल है। 11,25,000 का 80% होता है 9 लाख, इट इज वेरिएबल। और फिक्स कॉस्ट है 2,25,000। जैसे ही सेल्स चेंज होगी वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनटली चेंज होगी। सेल्स 15% इंक्रीज तो वेरिएबल कॉस्ट भी 15% इंक्रीज। 9 लाख प्लस 15% 10,35,000, बट फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी 2,25,000। तो टोटल कॉस्ट प्रपोज सिचुएशन में 12,60,000। नाउ द रिजल्ट इज प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर। प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर 15 lakh total sales minus 11,25,000, 3,75,000 is profit before cost of debtor. In proposed 17,25,000 minus 12,60,000, it is 4,65,000. Less bad debts. At present, bad debts is 1%. सेल्स का 1%। 15 लाख की सेल्स उसका 1% होगा 15,000। इन प्रपोज्ड इट इज 4%। 17,25,000 का 4% 69,000। देयर इज नो एनी अदर कॉस्ट ऑफ डेटर मीन्स डिस्काउंट नहीं है, कलेक्शन कॉस्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में इनकम टैक्स भी नहीं दे रखा है, तो हमें बैड डेट्स लेस करने से सीधा रिजल्ट मिलेगा नेट प्रॉफिट। हम उसमें से फिर कॉस्ट ऑफ डेटर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करेंगे। नेट प्रॉफिट 375 माइनस 15 इट इज 3,60,000 एंड 4,65,000 माइनस 69,000 इट इज 3,96,000। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Total cost at present it is 11,25,000. Rate of cost of capital is 12%. 11,25,000 multiplied by 12% multiplied by 30 divided by 360. 360 क्वेश्चन में दे रखा है। It is 11,250. The result is profit after cost of capital. 3,48,750. In proposed total cost is 12,60,000 multiply by 12% multiply by 60 divided by 360. It is 25,200. 396 में से लेस किया तो ये हो गए 3,70,800 और ये प्रॉफिट प्रेजेंट से ज़्यादा है, इसीलिए हम प्रपोज प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ए लिमिटेड हैज ए टोटल सेल्स ऑफ रुपीज 360 lakh. एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days. द पास्ट एक्सपीरियंस इंडिकेट दैट bad debts loss are 2% on sales. Expenditure incurred by the firm in administrating its receivable collection effort are rupees 1,40,000. These are avoidable cost. A factor is prepared to buy the firm receivable by charging 1% commission. The factor will pay advance on receivable to the firm at an interest of 15% per annum after withholding 10% as reserve. What should the firm do? Assume 360 days in a year. हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फैक्टर को। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ फैक्टर में हम कैलकुलेट करते हैं फैक्टर का कमीशन। फैक्टर का कमीशन
360 लाख हमारी सेल्स है और हमें कुछ नहीं दे रखा है, इसलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि पूरी की पूरी क्रेडिट सेल्स है। फैक्टर का कमीशन दे रखा है 1%, तो 360 लाख मीन्स 3 करोड़ 60 लाख का 1% होता है 3,60,000 कमीशन। नाउ इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस 360 लाख की सेल्स है और यहाँ पर हम एडवांस कितना, फैक्टर हमें एडवांस कितना देगा सबसे पहले तो वो कैलकुलेट करते हैं। एडवांस का अमाउंट, एडवांस का अमाउंट सेल्स 3 करोड़ 60 लाख, इसमें से लेस करेंगे कमीशन विच इज 3,60,000 और लेस करेंगे रिजर्व। 10% रिजर्व, 3 करोड़ 60 लाख का 10% होता है 36 लाख रुपीस का रिजर्व। द बैलेंस अमाउंट इज एडवांस अमाउंट। 3 करोड़ 60 लाख माइनस 3,60,000 माइनस 36 लाख, इट इज 3 करोड़ 20 लाख 40,000। ये जो एडवांस होगा उस पर इंटरेस्ट 30 डेज का चार्ज होगा, 360 डेज एज्यूम करना, और इंटरेस्ट की जो रेट है वो 15% पर एनम है। तो 3 करोड़ 20 लाख 40,000, इस पर 15% और 30 डेज का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, इट इज 4,00,500। इसमें से हम लेस करेंगे सेविंग ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स इज 2% ऑन सेल्स। 3 करोड़ 60 लाख का 2% होता है 7,20,000। ये बैड डेट सेव होगा। और सेविंग ऑफ कलेक्शन कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट 1,40,000। 3,60,000 में प्लस करेंगे 4,00,500 माइनस करेंगे 7,20,000 माइनस करेंगे 1,40,000। ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब ये नेट बेनिफिट हो गया नेट कॉस्ट की जगह। 99,500 इज नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट है, इसका मतलब हमें फैक्टर के साथ एग्रीमेंट करना चाहिए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज forecasted by the CS Limited for the year ending 31st March। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिटर्स के दे रखे हैं। एनुअल परचेज, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल सेल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आर को, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे, या रॉ मटेरियल कंज्यूम का डिवाइड करके हम 365 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 365। व्हाट इज एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मगर उससे पहले हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 45,000 प्लस परचेज इज 4 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 65,356। रॉ मटेरियल कंज्यूम इज 379,644। raw material consumed is 3,79,644 multiplied by 365. Now we calculate average stock of raw material. 45,000 is opening, 65,356 closing, divided by 2, it is 55,178. 55,178 multiplied by 365 divided by 379,644. It is 53.05 days.
53.05 days. Now W को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एवरेज स्टॉक WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय 365. Average stock of WIP opening is 35,000 plus closing is 51,300 divided by 2, average 43,150. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे रखी है 7,50,000 का डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय 365. इट इज 21 डेज. 21 डेज. इसको भी राउंड फिगर में ले लेते हैं 53 डेज. नाउ वी कैलकुलेट एफ. इट इज एवरेज स्टॉक finished goods divided by cost of goods sold multiplied by 365. Average stock finished goods 60181 plus 70175 divided by 2. इसमें डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,15,000 मल्टीप्लाई बाय 365. इट इज 26 डेज. नाउ डी. Average debtor divided by credit sales multiply by 365. Average debtor. Average debtor is 1,12,123 plus 1,35,000 divided by sales. हम पूरी सेल्स को क्रेडिट ही एज्यूम करेंगे, नहीं दे रखा हो तो डिवाइडेड बाय 11 लाख मल्टीप्लाई बाय 365. इट इज 82 डेज. इन सबको ऐड करना है 53 प्लस 21 प्लस 26 प्लस 82. इट इज 182 डेज. इसमें से हम लेस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज मल्टीप्लाई बाय 365. 365 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रखा है, अदरवाइज क्वेश्चन में अगर दे रखा होता 360 तो हम सारी कैलकुलेशन 360 पर करेंगे. एवरेज क्रेडिटर 50079 प्लस 70469 डिवाइडेड बाय 2. एवरेज क्रेडिटर इज 60274. परचेज आपको दे रखी है, पूरी परचेज को क्रेडिट एज्यूम करेंगे डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 365. इट इज 55 डेज. इसको लेस करोगे तो 127 डेज इज ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. नाउ वी कैलकुलेट बी. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन ए ईयर. नंबर ऑफ साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल 365 डेज और एक साइकिल को पूरा होने में 127 डेज. 365 डिवाइडेड बाय 127 2.874. थर्ड, we have to calculate working capital. Working capital equals to total cash cost divided by 365 multiplied by operating cycle period. Total cash cost, total operating cost हमें दे रखी है 9,50,000. 9,50,000 divided by 365 multiplied by 127. 9,50,000 divided by 365 multiplied by 127. It is rupees 3,30,548. Okay. Next question. Question number 6. A pro forma cost sheet of a company provides the following particulars: raw material 100 per unit, labor, overhead, total cost, profit or selling price. Company keeps raw material in stock 1 month, work in progress 1 week, finished goods 2 week, credit allowed by supplier 3 week, company allow 4 week credit to debtor, time lag in wages is 1 week, overhead is 2 week. Company sells 1/4 of the output. 1/4 means 25%. Cash sales and remaining is 75% credit sales. Cash balance maintain 37,500. Working capital, we have to calculate working capital 1,30,000 units of production. Assume that production is carried on evenly throughout the year. Wages and overhead accrue similarly. Work in progress stock is 80% complete in all respect, means material, labor, overheads are 80%. Assume 4 week equals to 1 month. वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, हमें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस दोनों पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है कुछ कह नहीं रखा है. WIP वैल्यू पर यूनिट
WIP वैल्यू पर यूनिट, टोटल बेसिस पे और कैश कॉस्ट बेसिस पे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सारे ही 80% लेने हैं, डेप्रीसिएशन है नहीं, तो टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस में कैलकुलेशन सेम होगी। 100 का 80%, 80 80, 37.5 का 80%, 30 30, सीधा टोटल कॉस्ट को भी हम 80% कर सकते हैं। 75 का 80%, 60 60, and it is 170 rupees. Finished goods value per unit, टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 100, 37.5 and 75, 100, 37.5 और 75, total is 212.5. Debtor value per unit, debtor per unit, टोटल बेसिस में डेटर सेलिंग प्राइस पर 250 और कैश कॉस्ट बेसिस में सेलिंग प्राइस में से आपको लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन नहीं है तो प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा 37.5, so it is 212.5. Now we have to calculate working capital requirement. Statement showing requirement of working capital. टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस। सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में कैलकुलेट करते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक इज इक्वल टू 1 मंथ। यहाँ पर 4 वीक को एज्यूम करना है 1 मंथ के इक्वल। इट मीन्स 1 मंथ का मतलब हो गया 4 वीक। 1,30,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़ पर यूनिट। 1,30,000 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज़ 10 lakh रुपीज़। 10 lakh टोटल बेसिस, 10 lakh कैश कॉस्ट बेसिस। Right now WIP stock, WIP stock is equal to 1 week। 1,30,000 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस दोनों में 170 ही रेट है। 1,30,000 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 170, it is 4,25,000 total basis, 425 cash cost basis. Finished goods stock, finished goods stock is equal to 2 weeks। 1,30,000 divided by 52 multiply by 2 multiply by total basis cash cost basis दोनों में 212.5। 1,30,000 divided by 52 multiply by 2 multiply by 212.5, it is 10,62,500। 10,62,500। डेटर्स पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल बेसिस में। 1,30,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय तो डेटर्स का टाइम पीरियड आपको यहाँ पर दे रखा है अलाउ 4 वीक्स मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस इज 250 और आपको इसको करना पड़ेगा 75%। 25% इज कैश सेल्स। 1,30,000 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 75%, 18,75,000। कैश कॉस्ट बेसिस 1,30,000 divided by 52 multiply by 4 multiply by 212.5 multiply by 75%,
1,30,000 divided by 52 multiply by 4 multiply by 212.5 multiply by 75%. 15,93,750. Then cash balance. Cash balance is rupees 37,500. टोटल बेसिस में भी और कैश कॉस्ट बेसिस में भी कोई भी एक्सपेंडिचर प्रीपेड नहीं है. तो 10 लाख प्लस 425 प्लस 1062,500 plus 18,75,000 plus 37,500, it is 44 lakh. It is total A. 10 lakh plus 425 plus 1062,500 plus 1593,750 plus 37,500, it is 41,18,750. ओके, अब हम करंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. करंट लाइबिलिटी. करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर्स को. सप्लायर. सप्लायर टाइम पीरियड इज 3 weeks. तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 52 multiply by 3 multiply by 100. 1,30,000 divided by 52 multiply by 3 multiply by 100, it is 7,50,000 टोटल बेसिस में भी और कैश कॉस्ट बेसिस में भी. आउटस्टैंडिंग वेजेज. वेजेज इज आउटस्टैंडिंग 1 week and overhead is 2 week. 1,30,000 divided by 52 multiply by 1 multiply by wages per unit is 37.5. and outstanding overhead 1,30,000 divided by 52 multiply by 2 week multiply by 75. 1,30,000 divided by 52 multiply by 1 multiply by 37.5. 93,750. 93,750. 1,30,000 divided by 52 multiply by 2 multiply by 75. 3,75,000. 7,50,000 plus 93,750 plus 3,75,000, it is 12,18,750. 12,18,750. Working capital A minus B, it is total B. 44 lakh minus 12,18,750, 31,81,250, and 41,18,750 minus 12,18,750, it is 29 lakh. Correct. Next question, question number 7. XYZ Company Limited is a pipe manufacturing company. Its production cycle indicate that material are introduced in the beginning of production cycle. Wages and overhead accrue evenly throughout the period of cycle. Wages are paid in the next month following the month of accrual. Work in progress include full material and other 50%. Detail of production process. Production 12 lakh units. Duration of production process means WIP 1 month, raw material 1 month, finished goods 2 month, creditors 1 month, debtors 2 month. Raw material cost 60 rupees, wages 10 rupees, overhead 20 rupees, selling price 100. Outstanding wages होगी 1 month की, overhead outstanding नहीं है. Required to calculate working capital required for the company. First, value of WIP per unit. Per unit. टोटल बेसिस में मटीरियल 100%, लेबर 50% 5, ओवरहेड 50% 10, एंड इट इज़ 75. सेम कैश कॉस्ट बेसिस में भी मटीरियल 100, लेबर 50, ओवरहेड 50, इट इज़ 75. डेप्रीसिएशन नहीं है, इसलिए टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस में वैल्यू पर यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं है. वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट. टोटल बेसिस मटीरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इक्वल्स टू ₹90. कैश कॉस्ट बेसिस में भी ₹90.
डेटर वैल्यू पर यूनिट, डेटर पर यूनिट, टोटल बेसिस में डेटर होगा सेलिंग प्राइस पे वैल्यूएशन ₹100 और कैश कॉस्ट बेसिस में 100 में से 10 रुपीज़ कॉस्ट प्रॉफिट के माइनस करेंगे तो ये होगा 90। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, बनाते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टोटल बेसिस पे और कैश कॉस्ट बेसिस पे। सबसे पहले करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक इज 1 month and total units is 12 lakh. 12 lakh divided by 12 multiplied by 1 multiplied by 60 rupees. It is 60 lakh. WIP stock. WIP stock is also 1 month. So 12 lakh divided by 12 multiplied by 1 multiplied by 75. It is 75 lakh. 75 lakh. Finished goods stock. Finished goods stock is equal to 2 month. 12 lakh divided by 12 multiplied by 2 multiplied by 90 rupees. It is 1 crore 80 lakh. Debtors. टोटल बेसिस में कैलकुलेट करते हैं, 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय डेटर्स है 2 मंथ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़, इट इज़ 2 करोड़। इन कैश कॉस्ट बेसिस 12 लाख divided by 12 multiplied by 2 multiplied by 90, it is 1 crore 80 lakh. There is no any prepaid expenses. Cash balance is also not given. So it is total current assets. Total A 60 lakh plus 75 lakh plus 180 lakh plus 200 lakh. It is 5 crore 15 lakh. 60 lakh plus 75 lakh plus 1 crore 80 lakh plus 1 crore 80 lakh. It is 4 crore 95 lakh. Now B, current liability. In current liability we calculate supplier creditors. Creditors time period is 1 month. So 12 lakh divided by 12 multiplied by 1 multiplied by 60 rupees, 60 lakh. Outstanding wages 12 lakh divided by 12 multiplied by 1 multiplied by wages per unit is 10 and it is 10 lakh rupees. Overhead is not outstanding. Correct? Overhead is not outstanding, only wages is outstanding. So total current liability is 70 lakh. 70 lakh. Total B. Working capital A minus B. 5 crore 15 lakh minus 70 lakh, it is 4 crore 45 lakh. And it is 4 crore 25 lakh. Now B point, we have to calculate working capital finance as per all the three method of lending norms as per Tandon committee. Core current assets is 1 crore. Bank finance as per first method. First method is current assets minus current liability. उसका current assets minus current liability आपको करना है उसका 75%। 4 crore 45 lakh का 4 crore 45 lakh का 75%, 3 crore 33 lakh 75,000 और 4 crore 25 lakh
का 75%, 3,18,75,000। सेकेंड मेथड कहता है करंट एसेट्स को 75% करना है, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स इज 5 करोड़ 15 लाख, उसका 75% माइनस 70 लाख करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू 3 करोड़ 16 लाख 25,000। करंट कैश कॉस्ट बेसिस में 4 करोड़ 95 लाख, उसका 75% माइनस 70 लाख इक्वल्स टू 3 करोड़ 1,25,000। थर्ड मेथड में हम 75% करते हैं करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं। कोर करंट एसेट्स इज 1 करोड़, 5 करोड़ 15 लाख में से पहले आपको 1 करोड़ लेस करना है, उसके बाद उसका 75% करना है और उसमें से 70 लाख करंट लायबिलिटी के माइनस करना है। इट इज़ 2 करोड़ 41,25,000। सेकंड में 4 करोड़ 95 लाख में से 1 करोड़ कोर करंट एसेट्स माइनस करेंगे तो 3 करोड़ 95 लाख, उसमें से 70 लाख माइनस करने और 3 करोड़ 95 लाख का 75% करना है और उसमें से माइनस करना है 70 लाख। इट इज़ 2 करोड़ 26 लाख 25,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्यू लिमिटेड सेल्स गुड्स एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ जीपी 20% ऑन सेल्स, जिसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। सेल्स 24 लाख, रॉ मेटेरियल 6 लाख, वेजेज पेड 480, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 150, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस 75। कंपनी की 1 मंथ स्टॉक रॉ मेटेरियल फिनिश गुड्स मिनिमम कैश बैलेंस 80,000. Company want to adopt a 10% safety margin in the maintenance of working capital. The company has no work in progress. Find out the requirement of working capital of the company on a cash cost basis. सबसे पहले तो हम डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। डेप्रीसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेल्स इज 24 लाख, लेस करेंगे जीपी इज 20% विच इज 4,80,000. The result is cost of goods sold 19,20,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन। मटेरियल कॉस्ट इज 6 लाख, लेबर कॉस्ट इज 4,80,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 लाख. It means depreciation is balancing figure. 19,20,000 minus 6 lakh minus 480 minus 6 lakh. It is 2,40,000 depreciation balancing figure. Working note second. Sales 24 lakh less GP 4,80,000. Result is cost of goods sold 19,20,000 जिसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है। डेप्रीसिएशन रुपीज़ 2,40,000। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, तो हमें मिलेगी टोटल कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे इसमें सेल्स, तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। Administrative overhead is 1,50,000. Selling overhead is 75,000. 19,20,000 plus 1,50,000 plus 75,000, it is 21,45,000. Sales is 24 lakh. So net profit is 2,55,000. Now we have to calculate working capital requirement. Statement showing requirement of working capital. Statement showing requirement of working capital. कैश कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट करना है हमें,
सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल स्टॉक को। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टॉक विच इज इक्वल टू 1 मंथ। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर एनम इज 6 लाख। 6 lakh divided by 12 multiplied by 1, it is 50,000 rupees. WIP स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है, फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स स्टॉक इज ऑल्सो 1 मंथ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें डेप्रीसिएशन है 2,40,000, तो 19,20,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हम माइनस करेंगे 2,40,000 डेप्रीसिएशन, रिजल्ट इज 16,80,000. It is cash cost of goods sold divided by 12 multiplied by 1. 1,40,000 is finished goods stock. Debtor. सेल्स में से नेट प्रॉफिट माइनस किया तो टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है 240, उसको भी माइनस किया तो ये आ गया टोटल कैश कॉस्ट 19,05,000. एंड डेटर इज इंक्लूडेड, डेटर इज 2 month credit divided by 12 multiplied by 2, it is 3,17,500. Prepaid sales promotion expenses, sales promotion expenses prepaid है, टोटल इज 75 और क्वार्टरली एडवांस है 75,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, it is 18,750. Cash balance is 80,000 rupees. 80,000 और यहाँ पर हम करेंगे इसकी टोटल A 50,000 प्लस 14,000 1,40,000 प्लस 3,17,500 प्लस 18,750 प्लस 80,000, it is 606,250. नाउ करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हम सप्लायर को कैलकुलेट करेंगे। रॉ मटेरियल 6 लाख है, उसके आगे लिखा है सप्लायर क्रेडिट 2 मंथ, सो 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2, इट इज 1 लाख रुपीज। आउटस्टैंडिंग वेजेज आउटस्टैंडिंग है पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो 4,80,000 divided by 12 multiplied by 1, it is 40,000 rupees. Outstanding manufacturing expenses is 6 lakh, 1 month outstanding है तो 6 lakh divided by 12 multiplied by 1, it is 50,000 rupees. Outstanding administrative expenses is 1,50,000 और ये outstanding है 1 month, 1,50,000 divided by 12 multiplied by 1, it is 12,500. Total B 1 lakh plus 40,000 plus 50,000 plus 12,500, it is 2,02,500. Working capital A minus B 4,03,750. Now we have to add safety margin. Safety margin is given 10% safety margin. तो हमने 403,750 जो वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट की, इसका 10% 40,375 and the working capital is 444,125. It is answer. Okay. Next question is 9th question. हमें इसमें बनाना है कैश बजट. Prepare monthly cash budget for 6 months from April on the basis of the following information. Estimated monthly sales January, February, March, April, May, June, July, August, September or October. Wages and salary are estimated to be payable April, May, June, July, August or September. Of the sales, 80% credit, 20% cash. 75% of credit sales are collected within 1 month, means 1 महीने में, and the balance in 2 months, means 2 महीने में. There are no bad debts loss. Purchase
is 80% of sales and are made on credit and paid for in the month preceding the sales. एक महीने पहले हम परचेज करते हैं, paid for in the month preceding the sales. The firm has 10% debenture of rupees 1,20,000. Interest on these has to be paid quarterly in January and April. The firm is to make an advance payment of tax of rupees 5,000 in July 2013. Cash balance 20,000 on April 1st 2013, and which is the minimum cash balance. Any cash surplus deficit above below this level is made up by temporary investment, selling of temporary investment or temporary borrowing at the end of each month. बैलेंस हमें 20,000 रुपये रखना है मिनिमम. अगर उससे ज़्यादा होता है तो हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे, अगर उससे कम होता है तो हम बोरो कर लेंगे, मगर हमें 20,000 का कैश बैलेंस मेंटेन करना है. कैश बजट बनाना हमें अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ का कैश बजट बनाना है. सबसे पहले तो हम परचेज को ये सेल्स को बाइफरकेट करते हैं क्रेडिट में और कैश में, और एक और कैलकुलेशन करते हैं और वो है मटेरियल की कैलकुलेशन विच इज़ 80% ऑफ सेल्स. तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं. वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, मंथ क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और मटेरियल की कॉस्ट. मंथ आपको डिटेल दे रखी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक. सितंबर और अक्टूबर. 1,00,000 की सेल है जनवरी की, जिसका 80% क्रेडिट 20% कैश. 20,000 और 80,000. अच्छा, 80,000 क्रेडिट और 20,000 कैश. February 1,20,000, 96,000 is credit, 24,000 is cash. March 1,40,000, 80%, 1,12,000 credit, 28,000 cash. April 80,000, 64,000 credit, 16,000 cash. May 60,000, 48,000 credit, 12,000 cash. June 80,000, 64,000 credit and 16,000 cash. 1,00,000 का 80%, 80,000 credit, 20,000 cash. 80,000 का 64,000 credit, 16,000 cash और 60,000, 48,000 credit, 12,000 कैश और 1,00,000 का 80%, 80,000 क्रेडिट और 20,000 कैश. ओके. मटेरियल की कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल्स. जनवरी की सेल्स 1,00,000, उसका 80% हो गया 80,000. 120 का 80% 96,000. 1,12,000, 64,000, 48,000, 64,000, 80,000, 64,000, 48,000 और 80,000. करेक्ट. ये हमने हर महीने की मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट की. और अब हम बनाते हैं कैश बजट. 6 मंथ का कैश बजट हमें बनाना है. कैश बजट. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ओपनिंग बैलेंस. फर्स्ट अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 20,000 रुपीज. कैश सेल्स. अप्रैल की कैश सेल्स 16,000, मई की कैश सेल्स 12,000, जून की कैश सेल्स 16,000, जुलाई की कैश सेल्स 20,000, अगस्त की कैश सेल्स 16,000, सितंबर की कैश सेल्स 12,000. नाउ क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स की रिसिप्ट के बारे में दे रखा है कि 75% आपको एक महीने में और रिमेनिंग 25% 2 महीने में.
तो हमें लास्ट मंथ 75% ऑफ लास्ट मंथ हमें रिसीव होगा और 25% ऑफ सेकेंड लास्ट मंथ हमें रिसीव होगा। अप्रैल में मार्च का 75%, मार्च की सेल्स है 1,12,000, उसका 75% 84,000। मई में अप्रैल का 75%, 64,000 का 75% 48,000। जून में मई का 75%, 48,000 का 75% 36,000। जुलाई में जून का 75%, 64,000 का 75% 48,000। अगस्त में जुलाई का 80,000 का 75% 60,000। और सितंबर में अगस्त का 64,000 का 75% 48,000। नाउ सेकेंड लास्ट मंथ का 25%। अप्रैल में फरवरी 96,000 का 25% 24,000। मार्च 1,12,000 का 25%, मई में मिलेगा 28,000। अप्रैल 64,000 का 25% 16,000 मिलेगा जून में। मई 48,000 का 25% 12,000 मिलेगा जुलाई में। जून 64,000 का 25% मिलेगा 16,000 अगस्त में। और जुलाई 80,000 का 25% 20,000 मिलेंगे सितंबर में। ये हमने सेल्स की सारा जो भी एडजस्टमेंट करना था वो कर दिया, ठीक है। इसके अलावा रिसिप्ट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम रिसिप्ट को करेंगे टोटल। अभी टोटल करेंगे नहीं, टोटल ए। नाउ पेमेंट स्टार्ट करते हैं। पेमेंट में सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल को हम 1 महीने पहले परचेज करके पेमेंट करते हैं। तो हम अप्रैल में मटेरियल परचेज करेंगे, हमें जो मटेरियल मई में रिक्वायर्ड है 48,000। जून में हमें मटेरियल चाहिए 64,000, ये हम मई में परचेज करेंगे, प्रीसीडिंग मंथ में परचेज करते हैं। जुलाई में 80,000 वो जून में परचेज करेंगे। अगस्त में 64,000 वो जुलाई में परचेज करेंगे। सितंबर में 48,000 वो अगस्त में परचेज करेंगे। और अक्टूबर में 80,000 वो सितंबर में परचेज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ये बी पॉइंट में वेजेज एंड सैलरी का पॉइंट दे रखा है। वेजेज एंड सैलरी जो हर महीने की आपको दे रखी है 9,000, 8,000, 10,000, 9,000, 8,000 और 10,000। देन 10,000, 9,000, 9,000, 10,000, 9,000 और 9,000। ये हमने पॉइंट सेल्स का किया, वेजेस सैलरी किया, ये भी कर दिया, परचेज का भी कर दिया। डिबेंचर पर इंटरेस्ट 1,20,000 का 10% होता है 12,000। ये हमें क्वार्टरली पे करना है। एक क्वार्टर में हो गए 3,000। ये जनवरी और अप्रैल में, जनवरी अप्रैल एंड सो ऑन। तो 3,000 हमें अप्रैल में देना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जनवरी का तो बनाना नहीं था, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई, जून और जुलाई में देने हैं 3,000। फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में देने हैं। अक्टूबर का हमें कैश बजट नहीं बनाना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बाद में एडवांस टैक्स का पेमेंट करना है 5,000 जुलाई में। जुलाई में 5,000 एडवांस टैक्स के पे करने, एडवांस टैक्स। और यहाँ पर हम करते हैं टोटल बी। फिर क्लोजिंग बैलेंस। फिर अगर एक्सेस अमाउंट है तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो लोन लेंगे। और फिर आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अप्रैल यहाँ दे रखा है कैश बैलेंस विच इज द मिनिमम कैश बैलेंस। एनी कैश सरप्लस या डेफिसिट अबव बिलो दिस लेवल इज मेड अप बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, सेलिंग ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट और टेम्परेरी बोरोविंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। या तो इन्वेस्टमेंट को सेल करके या बोरो करके हम उस बैलेंस को 20,000 लेके आएंगे। अगर कम है तो, ज़्यादा है तो इन्वेस्ट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर
इन्वेस्टमेंट प्लस माइनस दोनों कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हम प्लस और माइनस दोनों कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट हम कर भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम बेच भी सकते हैं। सबसे पहले अप्रैल की टोटल करते हैं, 20,000 प्लस 16,000 प्लस 84,000 प्लस 24,000, इट इज़ 1,44,000। 48,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000, इट इज़ 60,000। ये 72,000, ये होगा 90,000, ये होगा 64,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000, 82,000, ये 57,000 और ये 89,000। 1,44,000 में से माइनस करोगे 60,000 तो 84,000 हम ये बैलेंस आ रहा है 84,000, हमें 20,000 ही रखना है, तो इसका मतलब हम 64,000 को इन्वेस्ट करेंगे और बैलेंस होगा 20,000। 20,000 हम मई का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, 20,000 प्लस 12,000 प्लस 48,000 प्लस 28,000, इट इज़ 1,08,000 माइनस 72,000, 36,000 हम 16,000 को इन्वेस्ट करेंगे, बैलेंस होगा 20,000 का। 20,000 जून का ओपनिंग बैलेंस, 20,000 प्लस 16,000 प्लस 36,000 प्लस 16,000, इट इज़ 88,000 और ये है 90,000, नेगेटिव 2,000, तो हम इन्वेस्टमेंट को 22,000 को सेल करेंगे। हमने 64,000 और 16,000 टोटल 80,000 इन्वेस्ट किए हैं, वहाँ से हम 22,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे और ये बैलेंस हो जाएगा हमारा 20,000। 20,000 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस, 20,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 प्लस 12,000, इट इज़ 1 लाख। 1 लाख में से माइनस करेंगे 64,000, 1 लाख में से माइनस करेंगे 82 तो यह आएगा 18,000, तो हमें 2,000 के इन्वेस्टमेंट को और सेल करना पड़ेगा और ये होंगे 20,000 के। 20,000 अगस्त का ओपनिंग बैलेंस, 20,000 प्लस 16,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000, 1,12,000 माइनस 57,000, 55,000। अब हम 35,000 को इन्वेस्ट करेंगे और ये हो गया 20,000 का बैलेंस। 20,000 सितंबर में 20,000 प्लस 12,000 प्लस 48,000 प्लस 20,000, इट इज़ 1 लाख। 89 को किया तो माइनस ये हो गया 11,000। अब हम यहाँ पर 9,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे और बैलेंस हो जाएगा 20,000। करेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कैश बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रेडर हुज करंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ 6 लाख पर एनम एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 days wants to pursue a more liberal policy to improve sales. A study made by management consultant revealed the following information. Credit policy A B C D, क्रेडिट पीरियड बढ़ाना है, सेल्स इंक्रीज होगी और परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट का मतलब बैड डेट्स। सेलिंग प्राइस 3, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट 2.25, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपीज़। द करंट बैड डेट्स लॉस इज 1%, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, एज्यूम 360 days इन ईयर, विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर एडॉप्शन। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, अभी हमारी जो कॉस्ट है वो 2.25 पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट ₹2.25, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ₹2, तो ₹0.25 इज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। अभी हमारी यूनिट्स कितनी है, 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, अभी हमारी यूनिट्स है 2 लाख यूनिट्स। तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.25, हमारी फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपीज़। परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2,
selling price per unit 3 multiplied by 100, it is 66.67% is our variable cost. अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, इन सारी क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करेंगे. इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट तो हमारे पास जो अभी है, फिर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं A, B, C और D. सबसे पहले लिखेंगे इसमें क्रेडिट पीरियड. क्रेडिट पीरियड जो यहाँ पर डेज में दे रखे हैं, अभी प्रेजेंट में क्रेडिट पीरियड है, प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज. 30 डेज. ए में उसको 10 डेज से बढ़ाना है 40, इसमें 20 डेज से बढ़ाना है 50, इसमें 30 डेज से बढ़ाना है 60 और इसमें 45 डेज से बढ़ाना है मतलब 75. सेल्स, अभी हमारी सेल्स है 6 लाख रुपीज़. ए में 30,000 इंक्रीज होगी तो 6,30,000. बी में 48,000 इंक्रीज होगी तो 6,48,000. सी में 75 इंक्रीज होगी तो 6,75,000 और डी में 90,000 इंक्रीज होगी तो 6,90,000. करेक्ट. वेरिएबल कॉस्ट विच इज 66.67% ऑफ सेल्स 4,20,000, 4,32,000, 4,50,000 and 4,60,000. fixed cost 50,000. प्रेजेंट में फिक्स 50,000 और सेम फिक्स कॉस्ट हर कैपिटल पॉलिसी के ऑप्शन में लिखेंगे. टोटल कॉस्ट 4,50,000, 4,70,000, 4,82,000, 5 lakh और 5,10,000. Now profit before cost of debtor. Profit before cost of debtor 6 लाख में से 450 माइनस करेंगे तो 1,50,000. 630 में से 470 तो 1 लाख. 630 माइनस 470 1,60,000. 648 माइनस 482 1,66,000. 675 minus 5 lakh 175. 690 minus 510 1,80,000. लेस करेंगे बेड डेट्स. एट प्रेजेंट बेड डेट्स लॉस इज 1%. 1% ऑफ सेल्स. 6 लाख का 1% 6,000. ए में 1.5, फिर 2, 3 और 4. 6,30,000 का 1.5% 9,450. 648 का 2% 12,960. 675 का 3% 2,0250 और 690 का 4% 27,600. क्वेश्चन में कोई भी कलेक्शन कॉस्ट नहीं है और कोई भी तरह की कॉस्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट. इनकम टैक्स भी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये होगी प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट 1,49,000. 1,60,000 माइनस 9,450 1,50,550. 166,000 minus 12,960 1,53,040. 1,75,000 minus 2,0250. It is 1,54,750. 1,80,000 minus 27,600. 1,52,400. लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इससे रिजल्ट आएगा प्रॉफिट अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्स्ट प्रेजेंट में टोटल कॉस्ट है 4,50,000. यहाँ पर हमें 360 डेज और अभी प्रेजेंट में 30 डेज है. रेट दे रखी है आपको यहाँ पर 20% कॉस्ट ऑफ कैपिटल की.
तो 4,50,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360 इट इज 7,500। फिर टोटल कॉस्ट दे रखी है 4,70,000 का 20% मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 360 इट इज 10,444। देन टोटल कॉस्ट दे रखी है 4,82,000 उसका 20% मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 360 इट इज 13389 13389। टोटल कॉस्ट 5 lakh multiply by 20% multiply by 60 divided by 360 it is 1,667 and total cost 5,10,000 multiply by 20% multiply by 75 divided by 360 it is 21,250 1,31150 1,49,000 minus 7,500 141,500 150,550 minus 10,444 1,40,106 153,040 minus 13389 139,651 154,750 minus 1,667 it is 138,083। करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो यहाँ प्रॉफिट है वो है एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट का जो प्रॉफिट अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा है। तो हमें कोई भी प्लान को एक्सेप्ट नहीं करना है, प्रेजेंट प्लान पे ही रहना है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज question number 11. A company has prepared the following projection for a year: 21,000 units, selling price per unit 40, variable cost per unit 25, total cost per unit 35, 1 month की credit. The company proposed to increase the credit period allowed to its customer from 1 month to 2 months. It is advised that the change in the policy as above will increase the sales by 8%. Cost of capital rate is 25%. आपको present और proposed plan में से बताना है प्रपोज प्लान एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, एट प्रेजेंट टोटल कॉस्ट पर यूनिट is rupees 35, in which variable cost per unit is rupees 25. So fixed cost per unit is rupees 10. Fixed cost at present unit is 21,000 and fixed cost per unit is 10. So fixed cost is 2,10,000. Percentage of variable cost 25 rupees variable cost per unit, 40 rupees selling price per unit, multiply by 100. 25 divided by 40 multiply by 100, it is 62.5% is variable cost. Now we prepare income statement. Income statement, present or proposed. Present and proposed. Credit period. Credit period at present it is 1 month और propose में होगा 2 month. Credit period is given in month. At present 1, propose में 2. Sales at present 21,000 unit multiply by 40, sales is rupees 8,40,000. In proposed it increased by 8%. 8,40,000 plus 8%, it is 9,07,200. Variable cost 62.5% of sales, 5,67,000, and 8,40,000 multiplied by 62.5%, 5,25,000. Fixed cost 2,10,000, present में भी और proposed में भी. Total cost 7,35,000, 7,77,000. Profit
before cost of debtor, profit before cost of debtor, 8,40,000 minus 7,35,000, 1,05,000. 9,07,200 minus 777,000, it is 1,30,200. अभी कॉस्ट ऑफ डेटर में ना तो इस क्वेश्चन में बैड डेट्स है, ना कलेक्शन कॉस्ट है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, केवल और केवल अच्छा इनकम टैक्स भी नहीं है, केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमें माइनस करना है, लेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम प्रेजेंट में कैलकुलेट करते हैं. टोटल कॉस्ट इज 7,35,000, रेट इज 25%, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12, it is 15313. Proposed total cost is 777,000 multiply by 25% multiply by 2 divided by 12, it is 32375. 1,05,000 minus 15313, it is 89687. Profit above cost of capital. 130,200 minus 32375, it is 97825. प्रपोज प्लान में जो प्रॉफिट अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो प्रेजेंट से ज़्यादा है, सो प्रपोज प्लान शुड बी एक्सेप्टेड. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. RST Limited is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposed policy. Currently the firm has an annual credit sales 225 lakh and account receivable turnover ratio of 5 times in a year. The current level of loss due to bad debts is 7,50,000 rupees में दे रखा bad debts. The firm is required to give a return of 20% on the investment. It is cost of capital. The company variable cost 60% given the following information. Credit sales given on all policies. Account receivable turnover ratio is given. हम इससे credit period calculate कर सकते हैं. 12 divided by turnover ratio, the result is credit period. अगर हमें credit period calculate करना है, सबसे पहले present में calculate करते हैं. 12 divided by turnover ratio 5, 12 divided by 5, it is 2.4 month. Option first में 12 divided by 4, it is 3 month. और second में 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 4 मंथ. ये हो गया क्रेडिट पीरियड. बैड डेट्स लॉस दे रखा है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो हम बना देते हैं इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट फर्स्ट पॉलिसी और सेकंड जो यहाँ पर पॉलिसी ऑप्शन दे रखे हैं. सबसे पहले क्रेडिट पीरियड विच इज इन मंथ. At present it is 2.4, 3 and 4 month. Sales is 225 lakh, 2 crore 25 lakh, then 2 crore 75 lakh, and then 3 crore 50 lakh. Variable cost is 60% of sales. 2 crore 25 lakh का 60%, 1 crore 35 lakh. There is no fixed cost, so it is profit before cost of debtor. Cost of debtor 90 lakh. 2 crore 75 lakh multiply by 60%. 1 crore 65 lakh, it is 1 crore 10 lakh. 3 crore 50 lakh का 60%, 2 crore 10 lakh, and it is 1 crore 40 lakh. Less bad debts. Bad debts आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 7.5 lakh, 7,50,000 at present, 22,50,000 and 47,50,000. फिर हम इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ना तो इनकम टैक्स है और कॉस्ट ऑफ डेटर में उसके अलावा और कुछ है नहीं.
it is net profit. Net profit 82,50,000. 1 crore 10 lakh minus 22,50,000, it is 87,50,000 and 92,50,000 less cost of capital, and the result is profit above cost of capital. Profit above cost of capital. वेरिएबल कॉस्ट 1 करोड़ 35 लाख, उस पर 2.4 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20%, it is 5,40,000 cost of capital at present. First option 1 crore 65 lakh multiply by 20% multiply by 3 divided by 12, it is 8,25,000. Option second 2 crore 10 lakh multiply by 20% multiply by 4 divided by 12, it is 14 lakh. 82,50,000 minus 5,40,000, 77,10,000. 87,50,000 minus 8,25,000, it is 79,25,000. 92,50,000 minus 14 lakh, it is 78,50,000, and the best option is option first, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट अबव कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सबसे हाई है. और ये हमारा कंप्लीट होता है वर्किंग कैपिटल का टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.